Hello students, how are you all? We are back again on a favorite learning platform, Learn Forward by Feathercap. Today we are going to study chapter number 4, Nagarpalika. Now we studied about the government that operates in the rural areas. Now what about the urban areas? Let's study that. In the city's heart where dreams ignite, Nagarpalika stands a guardian in the night, sweeping streets with tender care, a silent vote to keep a town fair. With urban grace and duties profound, it nurtures growth where hope is found. In its embrace, the town takes flight. Nagarpalika keep our urban light. Now, what is the primary role of Nagarpalika in the town? As a guardian, it takes care of everything. How does Nagarpalika contribute to urban development? Because it acts as a guardian at night. It takes care of the roads, the streets, which are cleanliness is maintained by it. The grace of the status of the urban areas is maintained. The duties are properly performed. So it is obviously responsible for the growth where a lot of hope is found. So local self-government, we have studied about the rural areas. Now let's come to the urban areas. The population living in urban areas has been steadily increasing. The number of towns and cities has also increased considerably. 1 out of every 4 Indian is in the urban area. We have started in the last chapter that the urbanization has increased in many folds, which is going to increase a lot by 2050. Now, as per the current census, 1 out of every 4 Indian is living in urban areas. The local self-government in urban areas is different from the local self-government in rural areas. तो government जो हमारी है self-government जो है urban और rural area की different है. Towns and cities are large in size and a very large number of people live here. तो अगर हम बात करें population की, demographics की, तो urban areas में ज़्यादा लोग रहते हैं. The task of providing civic amenities such as electricity, drinking water, clean and well-lit road, hospitals, schools and public parks in towns and cities is more complicated. In addition, more funds are required for this purpose. Urban local government organization are constituted according to the town of size of a town or a city. तो अर्बन ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनती है, साइज पर डिपेंड करते हैं उस जगह का कितना साइज है, क्या पॉपुलेशन साइज है, राइट. और यहाँ की जो गवर्नमेंट होती है इसके अंदर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं, म्यूनिसिपल काउंसिल्स होती हैं, नोटिफाइड एरिया कमिटीज़ होती हैं, टाउन एरियाज कमिटीज़ होती हैं, कंटोनमेंट बोर्ड होता है, टाउनशिप्स होती हैं. Different forms of urban local body exist depending on the size of the city and the nature and extent of the civic functions. The forms of urban local bodies are, so we are going to study, as we have studied 3 tier system of Panchayati Raj, now we are going to study about Nagar Panchayat, municipality and a municipal corporation. तो अब हम urban local bodies की हम बात करें, हमने रूरल एरियाज़ की गवर्नमेंट पढ़ी पंचायती राज, तो हमने 3 बॉडीज़ पढ़ी थी वहाँ पे, राइट. अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अर्बन एरियाज़ में. अर्बन एरियाज़ के अगर हम लोकल बॉडीज़ को डिवाइड करें तो 3 पार्ट हो जाएंगे, नगर पंचायत, म्यूनसिपैलिटी और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन. जो नगर पंचायत होता है वो ट्रांजिशनल एरिया होता है म्यूनसिपैलिटी और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बीच में. सो लेट्स स्टडी अबाउट नगर पंचायत. नगर पंचायत किस लिए बनता है? इट इज़ सेटअप फॉर एन एरिया दैट इज चेंजिंग फ्रॉम अ रूरल टू एन अर्बन टाइप. तो जो एरिया रूरल से अर्बन बन रहा है उसके लिए हम नगर पंचायत अलॉट करते हैं. ये एक ट्रांजिशनल एरिया होता है. ये एरिया क्वालिफाई नहीं, दिस एरिया डजंट क्वालिफाई फॉर द सेटिंग ऑफ अ म्यूनिसिपैलिटी बट इट इज़ कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट टू इनफ टू हैव अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. तो अगर हम बात करें नगर पंचायत की, ये म्यूनिसिपैलिटी नहीं ज्वाइन कर सकता बट इसका मेजर रोल होता है वहाँ की लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी को ध्यान देना. ये डिपेंड करता है उसकी पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, कितना वहाँ से रेवेन्यू आ रहा है, कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है और उस एरिया का क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है. हर एक स्टेट के अंदर दे डिसाइड फॉर इटसेल्फ द मिनिमम पॉपुलेशन रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप अ नगर पंचायत. सो दे हैव टू डिसाइड फॉर देम. सो देयरफॉर दिस नंबर मे वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. इट इज नॉट फिक्स, इट मे वेरी. द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ नगर पंचायत वेरीज बिटवीन 9 and 20 डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द एरिया. इट हैज़ इलेक्टेड, नॉमिनेटेड एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर्स. तो इसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं? इलेक्टेड, नॉमिनेटेड और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं. इलेक्टेड मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम वार्ड्स. जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो वार्ड से इलेक्ट होते हैं. द एरिया इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स एज अ नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द एरिया. तो नगर पालिका में हम बात करें, नगर पंचायत में हम बात करें तो जो ये यहाँ पे इनका जो मेंबर्स होते हैं वो 9 से 20 के बीच में होते हैं. जो एरिया होता है वो किस में डिवाइड होता है? नगर पंचायत का एरिया वार्ड्स में डिवाइडेड होता है, राइट. हर एक, और इसमें कौन कौन होते हैं नगर पंचायत में? इलेक्टेड मेंबर्स भी होते हैं, राइट. इलेक्टेड मेंबर्स भी होते हैं, नॉमिनेटेड भी होते हैं और एक्स ऑफिशियल मेंबर्स भी होते हैं, राइट.
अब नगर पंचायत के अंदर कितने साल का टर्म होता है? 5 साल का टर्म होता है, बट इट कैन बी डिसॉल्व्ड अर्लियर इफ इट इज़ इनकॉम्पिटेंट और इफ़ इट अब्यूजेस इट्स अथॉरिटी। तो अगर हम नगर पंचायत की बात करें, 5 साल का टर्म होता है, पर हम इसको डिसॉल्व भी कब होगी? अगर ये अपना काम सही से ना करे। इनकॉम्पिटेंट का मतलब है कि ये टैलेंटेड नहीं है, ये काम नहीं कर रही अपना, या अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ करे। नगर पंचायत लुक्स आफ्टर क्या क्या देखती है? वाटर सप्लाई देखती है, ड्रेनेज देखती है, क्लीनिंग ऑफ स्ट्रीट्स देखती है, स्ट्रीट लाइटनिंग देखती है, सैनिटेशन देखती है, हेल्थ देखती है, प्राइमरी एजुकेशन देखती है, और मैनेजमेंट ऑफ फेयर्स, बेदिंग घाट्स एंड स्लम इम्प्रूवमेंट। तो ये सारा काम नगर पंचायत करती है। सो लेट्स हैव अ रिविजन। नगर पंचायत क्या होता है? एक ट्रांजिशनल एरिया, रूरल से अर्बन टाइप तक का। ये गवर्नमेंट बॉडी होता है, डिपेंड करता है वो उसका एरिया ऑफ पॉपुलेशन में। यहाँ पर जो लोग होते हैं फिक्स नहीं होते हैं, इट वेरीज, इट कैन वेरी फ्रॉम 9 to 20। इसमें जो एरिया होता है वो वार्ड्स में डिवाइडेड होता है। यहाँ पे एक मेंबर्स जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, नॉमिनेटेड एक्स ऑफिशियो होते हैं। नगर पंचायत 5 साल के आती है, बट पहले भी डिसॉल्व हो सकती है अगर वो अपना काम सही से नहीं करें। और इसका काम क्या होता है? ये देखती है वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, क्लीनिंग सिस्टम, सैनिटेशन, हेल्थ, एजुकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फेयर्स, बेदिंग घाट सेक्टर, एंड ऑल्सो द स्लम इम्प्रूवमेंट। Now what is a municipality? Municipality is also known as municipal committee. Municipality को municipal committee भी कहते हैं या municipal council भी कहते हैं। ये एक local self government body है smaller towns and cities। तो smaller towns and cities में हमारी आ जाती है municipality। All citizens of India who are 18 years of age and above can vote in the municipal election। जो इलेक्शन में कौन वोट कर सकता है? जो 18 साल से बड़े हैं। द कैंडिडेट्स हु विश टू कंटेस्ट द इलेक्शन मस्ट बी 21 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव। और जो खड़े होंगे इलेक्शन में वो 21 साल से ऊपर होने चाहिए। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन और सिटी डिटर्मिन्स द नंबर ऑफ मेंबर्स इन म्यूनिसपैलिटी। कितने मेंबर्स होने चाहिए? तो वहाँ पे हमने 9 से 20 पढ़े थे। म्यूनिसपैलिटी में 15 से 16 लोग होते हैं। जो सिटी होता है इसमें हमारे वार्ड्स में डिवाइडेड होता है। 1 मेंबर इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच वार्ड। तो हर जैसे सिटी है, ये टोटल सिटी है। अब हमारे सिटी में क्या बन गए? बहुत सारे वार्ड्स है। हर एक वार्ड का, जैसे ये वार्ड 1, वार्ड 2, वार्ड 3, तो इसमें से हर एक वार्ड में से एक मेंबर सेलेक्ट होगा। एंड कुछ सीट यहाँ पे रिजर्व्ड होती है। किसके लिए रिजर्व्ड होती हैं? रिजर्व्ड होती हैं SC ST के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए। 1/3 सीट जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, टोटल सीट्स की 1/3 सीट्स हमारी विमेन के लिए रिजर्व्ड होती है। जो मेंबर्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, दे आर इलेक्टेड फ्रॉम द एरिया, दे आल्सो फ्रॉम द पार्ट ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल। Some members are nominated for having special knowledge or experience of municipal administration। कोई स्पेशल होते हैं लोग, उनको उनकी स्पेशल नॉलेज की वजह से भी उनको इलेक्ट किया जाता है। म्यूनिसपैलिटी जो होता है वो भी 5 साल के लिए आती है, बट अगर ये सही से काम नहीं करती है या अपने रूल्स का उल्लंघन करती है तब इसको आप हट जाती है। In such a case, new members have to be elected within 6 months so that the term can be completed. Now municipalities have meetings at regular intervals। इनकी मीटिंग्स होती हैं। जो मेंबर्स होते हैं अपने एक चेयरपर्सन इलेक्ट करते हैं जो मीटिंग्स को प्रिसाइड करता है, और जो हेड ऑफ म्यूनिसपैलिटी होता है उसको कमिश्नर कहते हैं या प्रेसिडेंट कहते हैं। सो म्यूनिसपैलिटी का हेड क्या होता है? कमिश्नर होता है या प्रेसिडेंट होता है। अब ये जो वाइस चेयरमैन पर इसको हेड, इसके लिए ना इसके अंडर एक बंदा होता है वाइस चेयरपर्सन, जिसको इलेक्ट करते हैं, जो इसकी एब्सेंस में काम करते हैं। Certain permanent officials are appointed by the state government or the municipality. For example, there is an executive officer, secretary, health officer, sanitary inspector, municipal engineer, junior engineer और octroi inspectors and education officer। तो इसमें यहाँ पे इस वाली कमेटी में ये सारे मेंबर्स आते हैं। हमने कहा म्यूनिसपैलिटी जो है वो वहाँ पे 15 से 16 मेंबर्स होते हैं, डिपेंड करता है उस जगह पे, बिकॉज सिटी वार्ड्स में डिवाइड होते हैं। हर एक वार्ड में से रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। इसमें सीट्स रिजर्व होती हैं SC ST के लिए, विमेन के लिए। और यहाँ पर म्यूनिसपैलिटी का जो हेड होता है वो उसको हम बोलते हैं आपका कमिश्नर या प्रेसिडेंट। और इसमें यहाँ उसको हेल्प करने के लिए एक वाइस चेयरपर्सन होता है जो उसके एक्ट करता है उसके एब्सेंस में। उसके अलावा ये सब लोग सेक्रेटरी, हेल्थ ऑफिसर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, म्यूनिसिपल इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर एक्सेट्रा, दे ऑल्सो help in the working of municipality. Now let's come to municipal corporation. Now, as in the case of smaller towns, large cities are also divided into wards to elect their members of self-governing bodies. So here too the number of seats depend upon the size of the population. Now when we go to a bigger city, we have municipal corporation. All adult citizen can vote and anyone above the age of 21 can contest the election. तो यहाँ पे भी 18 साल से ऊपर कोई भी वोट कर सकता है। उसके अलावा 21 साल से ऊपर इंसान इस इलेक्शन में खड़ा हो सकता है।
इसमें कितने लोग रहते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि नगर पंचायत में पढ़ा हमने 9 से 20, यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी में हमने पढ़ा 15 से 16, और यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन है वेरी करता है। द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर में वेरी बिटवीन 50 एंड 100। दो सिटीज सच एज दिल्ली एंड मुंबई, जो भी मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पे मेंबर्स वेरी कर सकते हैं 134 से 221 तक। यहाँ के जो द मेंबर्स इलेक्ट अ हेड हु इज़ नोन एज महापौर और मेयर। अब इसका जो अगर हमारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हैं, इसके हेड को कहते हैं हम मेयर। यहाँ के हेड को हमने कहा था कमिश्नर या प्रेसिडेंट, और यहाँ वाले हेड को मेयर कहते हैं। जो डिप्टी मेयर होता है उसको इलेक्ट करते हैं कि वो मेयर की एब्सेंस में काम करे। जो द मेंबर्स देन दे इलेक्ट, so the members they elect some experienced and respectable people of the city और टू द कॉर्पोरेशन, इनको एल्डरमैन कहते हैं। तो कुछ रिस्पेक्टेड मेंबर्स जो एक्सपीरियंस मेंबर हैं उनको भी इलेक्ट करते हैं, एल्डरमैन कहते हैं। और कुछ सीट्स जो होते हैं SC/ST के लिए होती हैं, 1/3 टोटल सीट्स जो होते हैं विमेन के लिए रिजर्व होती हैं। जो मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर होते हैं और दे आर ऑल्सो इलेक्टेड फ्रॉम द एरिया दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। Some seats may be filled by nominated persons having special knowledge और experience of municipal administration, जैसे हमने म्यूनसिपैलिटी में पढ़ा। अब बात करते हैं द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हैज़ अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस। इसका CEO होता है जिसको हम म्यूनसिपल कमिश्नर भी कहते हैं। तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जो CEO होता है उसे हम म्यूनसिपल कमिश्नर भी कहते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स दिस पर्सन, और इसे अपॉइंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट इसे अपॉइंट करती है। जो स्टेट गवर्नमेंट CEO अपॉइंट करती है जिसको म्यूनसिपल कमिश्नर कहते हैं, वो क्या काम करता है? ही और सी टेक्स द डिसीजन मेड बाय द कॉर्पोरेशन एंड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑल द डिसीजन टेकन आर एग्जीक्यूटेड। सो ही इज़ बेसिकली, अगर CEO की बात करें, एक लिंक होता है किसके बीच में? स्टेट गवर्नमेंट के बीच में और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बीच में। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ लर्न दिस वेरी नाइसली। तो CEO का काम क्या होता है? एक मेजर लिंक होता है किसके बीच में? स्टेट गवर्नमेंट और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बीच में। वेरियस ऑफिसर्स सच एज दोज इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, इंजीनियरिंग एंड सैनिटेशन हेल्प हिम इन हिज वर्क। द म्यूनसिपल कमिश्नर coordinates the work and has a part to appoint lower level employees, और CEO सारे lower level employees को जो है अपॉइंट करता है। Municipal corporation is elected for a term of 5 years. It can be dissolved earlier if it does not function according to the rules laid down and is not able to function effectively. In such a case, new members have to be elected within 6 months and the term can be completed. तो ये जो भी term cancel होता है वो किस लिए cancel होता है? अगर आप अपना काम सही से नहीं कर रहे हो। Now let's come to committees. The day-to-day work of the municipalities and the municipal corporation is carried with the help of number of committees. अब जो municipal corporation हो या municipality हो, दोनों का काम कौन carry out करते हैं? कुछ committees होते हैं। committees को कैसे form करते हैं? ये they are formed to take charge of various tasks to be formed. तो committees में कुछ काम allotted होता है। इसको हम कितने मेंबर्स बनाते हैं? 5 से 12 मेंबर रहते हैं और इसके ऊपर एक चेयरपर्सन होता है। कमिटीज सच एज एजुकेशन कमेटी एंड द पब्लिक हेल्थ कमेटी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिटीज़। अगर हम बात करें कमेटीज़ में कौन सी कमेटी होती है जो सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन देखती है? एजुकेशन भी कमेटी भी होता है, पब्लिक हेल्थ कमेटी भी होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट कमेटीज़ होती हैं एक सिटी के अंदर। इसका फंक्शन क्या होता है? जो म्यूनसिपैलिटीज़ और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं इनकी फंक्शन दोनों की सिमिलर होती है, राइट? नगर पंचायत से अलग होती हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक हाइजीन, आप बाहर जाते हैं आपको सब सफाई मिलती है, वो सफाई बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होती है। बॉडी गवर्निंग ना वेरी नाइसली एंड रिगरसली टू मेक you give that aesthetic experience, give that a wow experience when you travel on the roads and it's all spick and span. It is because of somebody working very hard on it. तो ये पब्लिक हाइजीन को मेंटेन करती है। तो क्या करते हैं, जितना भी गार्बेज है ना उसका डिस्पोजल, उसका कलेक्शन, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका राइट डिस्पोजल। आप सुबह सुबह आवाज़ आती है कूड़े वाला आया, एंड दिस वॉज स्टार्टेड वेरी नाइसली एंड नाउ द गार्बेज इज कलेक्टेड इन अ मैनर दैट इट इज़ डिस्पोज इन द राइटियस वे सो दैट इट मे नॉट हार्म द एनवायरनमेंट, राइट? देन पब्लिक हेल्थ। फिर अब पब्लिक हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ये लोग हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज बनाते हैं, चाहे वो म्यूनसिपैलिटी हो या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो, और यहाँ पे कोई भी वैक्सीनेशन ड्राइव हो, लोगों को किसी पर्टिकुलर बीमारी से बचाना हो, स्मॉल पॉक्स, कॉलरा, टीबी, तो या फिर खाने का भी अडल्ट्रेशन से बचाना हो, ये भी पब्लिक हेल्थ में ही आता है। देन इज़ पब्लिक कन्वीनियंस। पब्लिक कन्वीनियंस के लिए आपको वो वेजिटेबल मार्केट फूड मार्केट देते हैं, फूड ग्रेन मार्केट देते हैं, कंज्यूमर गुड्स के लिए मार्केट देते हैं। ये आपको हेल्प करते हैं कि वहाँ पे पब्लिक टॉयलेट्स हो, यूरिनल्स हो, आपको फ्रेश एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं कि आपकी प्रॉपर लाइटनिंग ऑफ स्ट्रीट्स हो, बिकॉज अगर लाइटनिंग नहीं होगी विल हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम एंड इनकन्वीनियंस। सो दिस इज़ अ पब्लिक कन्वीनियंस, प्लीज रिमेंबर। तो क्या? वेजिटेबल मार्केट, फूड ग्रेन मार्केट्स, एंड दे प्रोवाइड अस पब्लिक टॉयलेट्स, यूरिनल्स, they also provided with clean drinking water and electricity.
ना इनका एक और काम भी होता है, जब भी कोई पैदा होता है या किसी की डेथ होती है तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है, वो भी ये लोग ही करते हैं। सो इसके जो रिकॉर्ड है बर्थ और डेथ का, तो सर्टिफिकेट्स बनते हैं और ये काम भी ये लोग करते हैं। इसके अलावा ग्रेव यार्ड्स का मेंटेन करना, क्रिमेशन ग्राउंड को मेंटेन करना या इलेक्ट्रिकल क्रिमेशन को भी मेंटेन करना, दिस इज डन बाय दिस अथॉरिटी ओनली। Now in terms of education, to build and maintain schools, public libraries, museum and zoos, this is again responsible. अगर ब्रिज बनना है, रोड बनना है, तो वो भी सारा काम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी करती हैं। Certain functions are optional. For example, providing and maintaining fire engine, म्यूजियम, पार्क्स एंड टॉयलेट्स आर ऑल्सो ऑप्शनल फॉर म्यूनिसिपल बॉडी। तो ये चीज़ ऑप्शनल है, बट कुछ म्यूनिसिपल बॉडीज़ जो है इस पर भी काम करती हैं। अब इनके पास पैसा कहाँ से आता है ये सब काम करने के लिए? पैसा आता है जो टैक्स हम भरते हैं। वो टैक्स कैसे आता है? सो टैक्सेस आर कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्सेज, गुड्स कमिंग फ्रॉम द सिटी को चीज़ें आ रही हैं, नोन एज ऑक्ट्रॉय और टर्मिनल टैक्स। तो टर्मिनल टैक्स से पैसा आ जाता है। फिर हाउसेज एंड लैंड कॉल प्रॉपर्टी टैक्स से पैसा आता है। बिजनेस और ऑक्यूपेशन से पैसा आता है। टैक्स ऑन पब्लिक लाइटनिंग एंड हाइजीन फैसिलिटीज़, वाटर टैक्स से पैसा आता है। व्हीकल टैक्स ऑन मोटराइज व्हीकल्स, टोल टैक्स से पैसा आता है। टोल देते हैं ना, जब हम जाते हैं यहाँ से किसी भी हाईवे को क्रॉस करते हैं टोल देते हैं, तो वो पैसे यहाँ रोड्स एंड ब्रिजेस फॉर द यूज ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस। फिर एजुकेशन टैक्स से पैसा आता है, एजुकेशनल एक्टिविटीज के लिए। रेंट कलेक्टेड फ्रॉम बिल्डिंग्स ओन बाय द अर्बन लोकल बॉडी एंड फीस फॉर इशूइंग बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट। तो सारा पैसा कैसे आता है? इन सारे सोर्सेज से आता है। अपार्ट फ्रॉम द टैक्सेस कलेक्टेड, अर्बन लोकल बॉडी ऑल्सो रिसीव एनुअल ग्रांट्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट भी इनको एनुअली एक अमाउंट देती है सो दैट दे कैन रिफर्बिश द अकाउंट्स फॉर बेटर वर्क। दे कैन ऑल्सो बोरो फंड्स फॉर स्पेसिफिक पर्पज इफ द स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्स ऑफ देम। और अगर इनको फंड अप्रूव हो जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो एक्स्ट्रा फंड से ये काम करते हैं। A state finance commission is appointed for every 5 years to review the financial position of the urban local bodies. तो इसको ऑडिट करने के लिए एक स्टेट फाइनेंस कमीशन भी होता है कि कोई भी काम ऐसा ना हो कि कोई भी लीक हो या लूप होल हो। Besides looking into the financial position of the state, it also gives suggestion. तो financial position तो वो देखता भी है, पर suggestion देता है state government को कि the measure that needed, they really need to strengthen the financial position of the local self government. The urban local bodies may impose taxes authorized by the state legislature. तो urban local bodies तभी लगा सकते हैं जब state legislature से approve करता है। अब हम पढ़ते हैं एक बहुत सुंदर स्टोरी, बहुत अच्छी स्टोरी सूरत की, जिसने बहुत मेजर प्रॉब्लम सॉल्व की वेस्ट मैनेजमेंट की। अगर हम बात करें, सूरत इज द मोस्ट beautiful, well lit, clean, spick and span place, but it was not the case earlier. Let us understand that. The rapid urbanization and rise in population Surat led to the growth of slums. तो बहुत population बढ़ गई, slums बढ़ गए। जब increase in the amount of garbage produced and overflowing drains. In 1994, Surat was struck by an outbreak of plague. तो अब क्या हुआ? बहुत ज़्यादा population बढ़ी, slums बढ़े, बहुत सारा garbage बढ़ा और एक बीमारी फैल गई। ये जो डिजीज़ थी, ये इसने कंट्री वाइज पैनिक क्रिएट कर दिया। यहाँ के लोग तो थे, म्यूनसिपैलिटी को ब्लेम कर रहे थे, बट फाइनली म्यूनसिपैलिटी सिटीजन को ब्लेम करी थी और लड़ाई शुरू हो गई। बट 18 महीने के अंदर ये प्रॉब्लम जो है बिल्कुल यू टर्न लेके एक सिटी, ये जो सबसे डर्टी सिटी थी, ये क्लीनेस्ट सिटी बन गई। ऐसा कैसे हुआ? लेट्स अंडरस्टैंड। जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन था उसने एक मेजर रोल प्ले किया इस कुछ जो डिसीजन थे जो कॉर्पोरेशन ने लिया था। अब उन्होंने क्या किया था? उन्होंने सिटी को 6 जोन में डिवाइड कर दिया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम अलॉट कर दें, और एक कमिश्नर अलॉट कर दिया था विद एडिशनल पावर्स हर एक जोन के लिए, तो वो उसको मॉनिटर करता था। The dignitary responsible for solid waste management were made accountable for their work. Regular field visits were made for which was made compulsory for them. जो solid waste management था, डिपार्टमेंट था, और जो इससे इंटरलिंक डिपार्टमेंट थे, उनको बोला कि आप एक साथ मिलकर कॉपरेट करके काम करिए एंड वेस्ट को कैसे मैनेज करना वो समझिए। Grievance redressal cards were issued to people so that the complaints could be registered. The complaint was attended within 24 hours and the card returned to the citizen. तो अगर आपको लग रहा है ना तो कि आपको कोई ग्रीवियंस है, तो आपको एक SLA दे देते थे, एक सर्विस लेवल अग्रीमेंट, इतने टाइम में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और 24 घंटे के अंदर उस कंप्लेंट को बेसिकली वो एड्रेस कर देते थे। In addition to administrative changes, change laws also had an important role in playing the role in improving the civic condition. The government realized that it was important to impose a penalty in order to make people aware of their responsibility towards maintaining the cities. तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये काम हैंड इन हैंड कैसे चलेगा जब इंसानों के अंदर जो लोग जो कॉमन जनता है वो भी पार्टिसिपेट करे। तो उसने गवर्नमेंट ने कहा अगर अब गंदगी मिलेगी, जहाँ पे भी कोई गंदगी डालेगा, लिटरिंग मतलब कोई भी वेस्ट फेंकेगा, तो उसको 50 रुपये का फाइन लगेगा। Fine of ₹50 was imposed for every offence of littering and it was double for every repeated offence. और अगर आप दूसरी बार करोगे तो डबल हो, ऐसे डबल होता रहेगा। The city roads were swept twice a day and the corporation engaged
प्राइवेट स्वीपर्स टू क्लीन द इंटीरियर्स ऑफ स्ट्रीट। अब इस सफाई 2 बार होती थी और स्वीपर्स को भी बहुत अलर्ट कर दिया था कि गंदगी नहीं चाहिए। Surat has thus become a model city and working with the local government for an example for other municipal corporations to follow and implement in their respective cities। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था जिसने लोगों को सेंसिटाइज किया था कि अगर आप अलर्ट हो जाएं, अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो जाएं, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द गवर्नमेंट, इज अबाउट द पीपल। इफ पीपल आर नॉट डूइंग इट देन डेफिनेटली यू कैन मेक योर प्लेस अ क्लीन सिटी एंड दिस हैज़ बीन प्रूव्ड बाय सूरत। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है आप समझते हैं इसको। Within the municipal area, a department of municipal board is responsible for regular collection and disposal of waste। तो disposal of waste कौन देखता है? municipal board देखता है। In India, all the municipal corporations have adopted the practice of landfilling of low-lying areas to dispose of solid waste। जो वेस्ट होता है उसे आप डंप करते हो एक लैंड पे, जो डिप्रेशंस होते हैं, डिचेस होते हैं, सोक पॉन्ड्स होते हैं या आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी इन एन अनसाइंटिफिक मैनर। द अबव प्रैक्टिसेस ऑफ डिस्पोजल लीड्स टू एयर एंड वाटर पोल्यूशन, फाउल स्मेल एंड सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो ये ऐसे करा जाता है तो इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? डू नॉट थ्रो गार्बेज केयरलेसली, कैसे भी गार्बेज नहीं फेंको। ऑलवेज यूज़ डस्टबिन दैट हैव लिड्स, डस्टबिन वो वाले यूज़ करो जिसका लिड है जो बंद हो जाए, सो दैट गंदगी और ना फैले। इंश्योर दैट गार्बेज इज़ टेकन अवे रेगुलरली। आपके घर में गार्बेज वैन्स आती हैं, वो हमेशा डिस्पोज हो रेगुलरली। थ्रो गार्बेज ओनली आयरन बिन, ट्रॉलीज और डस्टबिन प्रोवाइडेड। आप ऐसे ही नहीं कि आपने आइसक्रीम खाई, उसका रैप उठाया, ढक फेंक दिया, आपने सोडा पिया, कैन पिया, कोल्ड ड्रिंक पिया एंड देन यू थ्रो द थिंग्स। नो, दैट्स नॉट डन। एंड इफ यू सी एनीबडी डूइंग इट, प्लीज स्टॉप देम, प्लीज स्टॉप देम। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वंस ट्रीटेड सॉलिड वेस्ट कैन बी सेफली कलेक्टेड। अगर ऐसा होगा कि एक सॉलिड वेस्ट अलग से कलेक्टेड है, ट्रांसपोर्टेड एंड डिस्पोज्ड ऑफ, अगर सॉलिड वेस्ट सही से आपका डिस्पोज हो रहा है विदाउट क्रिएटिंग हेल्थ हज़ार्ड्स फॉर द पब्लिक इन जनरल एंड द वर्कर्स इन पर्टिकुलर, तो वेस्ट प्रोसेस अगर जो है ट्रीटमेंट प्रोसेस को अगर हम सही से ट्रीट करते हैं तो फाउल स्मेल नहीं आती है गार्बेज से, वो हट जाती है। वेस्ट में फ्लाइज नहीं आती, मस्किटो से जर्म्स ब्रीड नहीं करते हैं। वेस्ट ट्रीटमेंट जो होता है इट प्रिवेंट्स प्रोडक्शन ऑफ मीथेन एंड अदर फाउल स्मेलिंग गैसेज, देयरफॉर देयर आर लेस चांसेस ऑफ स्मोक, फायर एंड एक्सप्लोजन हज़ार्ड्स एट डंपिंग यार्ड। तो डंपिंग यार्ड में आग लगने के कम चांसेस होते हैं, राइट। नाउ द व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? अगर हम ये वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए क्या ऑब्जेक्टिव होता है? आप पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करिए कि गार्बेज मटेरियल को कैसे आपने डिस्पोज करना है। डोर टू डोर कलेक्शन ड्राइव स्टार्ट की गई। उन्होंने कहा कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को आप सेपरेट कर दीजिएगा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से, सो दैट इट कैन बी यूटिलाइज। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंपोस्टिंग टेम्परेचर, अभी हम कंपोस्टिंग पढ़ेंगे आगे, कंपोस्टिंग क्या होता है। फिर मार्केटिंग द कंपोस्ट एंड टू बी अ रोल मॉडल एट प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। Now, composting क्या होता है? Very easy to do. Door-to-door collection of the waste throughout the week helps in the composting process. After filling the bit, तो एक गड्ढा बनाया जाता है, इसको भर दिया जाता है, उसके ऊपर पानी डाला जाता है ऊपर से, और मॉइस्चर कंटेंट जो है 50 to 60% मेंटेन किया जाता है। इस वेस्ट को घुमाया जाता है, चर्न करते हैं, मतलब इसको मिक्स किया जाता है रेगुलर इंटरवल्स में ड्यूरिंग द इनिशियल 2 days फॉर बेटर एयर सर्कुलेशन। फिर काउ डंग इसके ऊपर स्प्रे की जाती है कि ये जो है अपना काम शुरू कर दे। पंचकाव्य इज एडेड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द कंपोस्ट, सो क्वालिटी ऑफ कंपोस्ट इम्प्रूव की जाती है। वेस्ट मैनेजमेंट का फ़ायदा क्या होगा इससे? इसमें ना इट इनकरेजेस पब्लिक कॉपरेशन। लोगों को समझ आएगा कि इट इज़ नॉट वन पर्सन और इट इज़ नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर बोर्ड, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी ह्यूमन बींग टू कॉपरेट एंड डू इट, and it keeps roads and streets clean. Who will not like to walk on the roads that are not stinking? It provides extra income to the special village panchayat and it results in the production of best quality manure. तो ये फ़ायदा है वेस्ट मैनेजमेंट का, वेस्ट मैनेजमेंट का एडवांटेज है which you will be asked in the question, right? Now supervision of local bodies. अब ये सब काम कर रहे हैं, अब लोकल बॉडीज़ अपना काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये कौन देखता है? जो म्यूनिसिपलिटीज़ एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है फंक्शन करती हैं वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर फंक्शन करती हैं। अगर एक गवर्नमेंट इनके काम से सेटिस्फाइड नहीं है तो इनके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकता है, इनको डिसॉल्व भी कर सकता है। हाउएवर इलेक्शंस टू द डिसॉल्व बॉडी मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 months ऑफ द डिसोल्यूशन। तो अगर इनको डिसॉल्व करे तो 6 महीने में इलेक्शन हो जाना चाहिए। अब आता है आपका डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, राइट। तो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज द पंचायती राज बॉडीज प्लान एंड एलोकेट रिसोर्सेज। सिमिलरली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरियाज, पंचायती राज थी यहाँ पे अर्बन एरियाज के जो डेवलपमेंट के लिए अर्बन लोकल बॉडीज प्लान करती हैं और एलोकेट करती हैं रिसोर्सेज को। एक प्लानिंग कमेटी होती है हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो रहती है, वो देखती है कि प्लान्स क्या है, क्या प्रिपेयर हुआ है पंचायती राज बॉडी से एंड अर्बन लोकल बॉडी से, एंड प्रिपेयर्स अ डेवलपमेंट प्लान फॉर द डिस्ट्रिक्ट एज अ होल, एंड दिस इज डन बाय द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी।
Then comes the State Election Commission. Now this is also very important. What's the role of a District Planning Committee? Now let's come to what is the role of State Election Commission. हर एक स्टेट के अंदर एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, उसको स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हेड करते हैं. इलेक्शन फ्रॉम द रूरल बॉडीज or the Panchayati Raj system and the urban local self-government are supervised by the State Election Commission. People must cooperate with the urban local bodies and must be involved in the administration of towns and cities. Now let's come to the question answers. The local governing body for smaller urban areas में municipality होती है आपकी. नगर पंचायत जो होता है उसका 5 साल का टर्म होता है. म्यूनिसपैलिटी के अंदर वार्ड्स होते हैं आपके. Then elected member of the municipal तो commissioner होता है आपका. The DAX has a link between the state government, municipal commissioner जो आपका रहता है. The financial position of the urban local bodies is reviewed by the state government. Then regular collection of the waste के लिए हमने कहा था municipal board होता है आपका. The plans prepared by the पंचायती राज bodies और urban local bodies, और उसको कौन देखता है? आपकी प्लानिंग कमेटी देखती है डिस्ट्रिक्ट में जो रहती है. अब नगर पंचायत क्या है? एक ट्रांजिशनल एरियाज है, राइट. अब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस क्या है? Municipal corporations and municipal corporations are the larger cities. Councils are smaller urban areas, and aldermen are the respectable people who help in the elected but to the municipal corporation or municipal council, right. Now let's come to the next question, that is question number C. Now the local government cities such as Delhi, Kolkata and Mumbai are known as municipal corporations. The Nagar Panchayat has elected members, the nominated member and ex officio member. A person who is above the age of 21 can contest elections for the local self government in urban areas. The head of the municipality के head को क्या कहते हैं आपका? Municipal commissioner. Then the head of the म्यूनिसपैलिटी, अगर हम बात करते हैं आपका म्यूनिसपैलिटी के हेड को, तो आप उसे कमिश्नर भी कहते हैं और प्रेसिडेंट भी कहते हैं, राइट. देन द म्यूनिसपैलिटीज एंड म्यूनिसिपल कमीशन वर्क अंडर द सुपरविजन. ये किसके सुपरविजन में काम करते हैं? तो अगर हमने देखा है दे वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन आंसर्स. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली. व्हाट डू the different forms of urban bodies local depend on? The different forms of urban local bodies depend on the funds. When can a municipality be dissolved? A municipality can be dissolved if it doesn't function properly, or if it uses its authority wrongly. For whom are the seats reserved in municipal corporation? Seats are reserved for SC, ST, schedule caste, schedule caste, and the complete the 1/3 of the seats are of the total are also reserved for women. What role do committees play in the municipalities and the municipal corporation? Committees plays a major role in the municipal corporation, and committees they take major charge of the various tasks performed. They are made of 5 to 12 members and they are headed by a chairperson. इसमें basically we have education committee, we have public health committee. They play an important role in the administration of the cities. And the next question. Then is this is done, this is done, this is done, this is done. Write the name of 3 public convenience. 3 public convenience and municipalities and municipal corporation provide 3 public convenience. आपका हो गया, आपका urinals हो गया, आपके toilets हो गए. Then they provide you with parks, they provide you with education, they provide you birth and death certificate. What does the State Election Commission do? State Election Commission is basically responsible for a lot of important work. It is a person who is basically responsible for the right elections. So elections for the urban areas are supervised by the State Election Commission, and people cooperate with him, and then the elections are carried out peacefully, right. Now let's come to the next question. The next question is, answer the question is detailed. What is Nagar Panchayat? What does it look after? So if we talk of the government bodies at the urban areas, we have Nagar Panchayat. What is the major role of Nagar Panchayat? The major role of Nagar Panchayat is that it operates, it is a transition between, it's a transition between municipality and municipal corporation, right? And it not only takes care of the development, it is basically, first it is formed basis on the geographical dimension basically of that particular place, and the members here may vary between 9 to 20, as I told you earlier. In this area, the area is divided into wards. We have the elected member, we have the nominated member, and we have the ex officio member, right? And in every ward we have members which are elected from that particular area.
they have a term of 5 years which can be dissolved if it doesn't take care of its work properly. The major work of a Nagar Panchayat is that it takes care of water supply, drainage, write it like number 1, drainage, number 2, cleaning of street, number 3, street lighting, sanitation, health, primary education, management of fairs, bathing ghats and slum improvement. So, there are 10 points which you have to mention when you mention the working of the Nagar Panchayat, right. Let us come to question number 2 in detail, which asks us list the function of CEO in a municipal corporation. So, CEO is a major person who is a major link between the government and the municipal corporation. He plays a major role. So, CEO, he is a major role, he is a link between, link between the state government and the municipal corporation. He is a person who sees that the right decision are made and the decisions are properly executed, right. Then let us come to the next question. The next question is, right, we have done this, discuss the function of municipality and municipal corporation. The both of municipality and municipal corporations have the same function which we have done in detail. Now, let us redo it. The municipality and municipal corporation, they both have the same function, the major being that they are responsible for maintenance of public hygiene. This is number 1, you have to mention as number 1, maintenance of public hygiene. They are really responsible for maintenance of public hygiene. Along with public hygiene, they are also responsible for public health, because they take care of spread of any diseases by building the hospital and dispensary. So, all the spread of the diseases, the vaccination done, the adulteration is taken care by the public health. Then there are public convenience. For public convenience, they have the vegetable market, they have the food grain market, they have the public toilet, they have the urinal, they provide fresh water, they provide electricity, they also register the births and death certificates, they also build the schools, public libraries, they also build the roads and bridges. So, these are the common function of municipal corporation and municipalities, right. Now, let us come to the next question. The next question is, what are the benefits of waste treatment process? Now, waste treatment process is a process which help us a lot, right. So, if we treat the waste properly, it encourages public cooperation. हमने पढ़ा ना, ये public cooperation में help करते हैं, roads और streets को clean रखते हैं, extra income देते हैं village पंचायत को, and it also results in the production of best quality manure. So, these are the advantages of waste management, right. Then this is done. What is a district planning committee and what is its function? If we talk of a district planning committee, it is at every district. So, a planning committee is formed at every district which looks into the plans prepared by Panchayati Raj bodies and urban local bodies and prepares a development plan of that particular district. Please write it word to word, because without that you will not be able to fetch marks. The next question is the last question. Now, you have read the case study of Surat. Do you think that imposing a penalty was the main reason for making Surat a model city? No. We have read the case study of Surat. Now, in Surat, we have studied that it was not possible if everybody would not have joined hands and would have taken a collective action. Yes, the imposing of fines was fine, right? It was basically a way to stop people from spreading litter further and help people understand the value of clean, nice and well lit roads. So, this was possible when people were imposed fine, and imposing fine just made them sensitive to be alert to their respective duties, but major was to make them understand and realize the importance of the problem we create for ourselves by littering everywhere. So, the government made a rule wherein people were imposed a fine of 50 rupees for littering around, and it was doubling it for if it was a repeatable offence. So, this was just a way to encourage people to be responsible for their environment. I hope you learned the chapter nicely, and I hope you had good time learning. Happy learning. Thank you.